बीइंग इंडियन मुस्लिम, मैं अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में जागें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। भारत ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCIRF की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट को गहरे, पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की वास्तविकता स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और इसका उद्देश्य केवल भारत की छवि को खराब करना है। आइए आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है। USCIRF की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ रही है और सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रही है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपाती स्रोतों पर आधारित है और इसमें गलत जानकारी शामिल है। In anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas, who's raising awareness about the genocide and crimes against humanity that China is committing against the predominantly Muslim Uyghurs in Xinjiang. इन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सरकार और समाज बहुलतावादी और लोकतांत्रिक है और इस तरह की रिपोर्टें केवल USCIRF की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाती है। जायसवाल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय यहां सुरक्षित है और देश में दरगाहों की संख्या अमेरिका से कहीं अधिक है। यह दिखता है कि भारत धार्मिक स्थलों और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। USCIRF ने अमेरिकी सरकार से भारत को विशेष चिंता का देश CPF घोषित करने की सिफारिश की है और कुछ भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है। यह सिफारिशें भारत को अस्वीकार्य हैं और भारत ने इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। Today I will begin with a statement on the US State Department report on International Religious Freedom 2023, and thereafter we'll open the floor for questions. We have noted the release by the US State Department of its report on International Religious Freedom for 2023. As in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our constitutional provisions and duly enacted laws of India. It has selectively picked incidents to advance a preconceived narrative as well. In some cases, the very validity of laws and regulations are questioned by the report, as are the right of legislatures to enact them. The report also appears to challenge the integrity of certain legal judgments given by Indian courts. The report has also targeted regulations that monitor misuse of financial flows into India, suggesting that the burden of compliance is unreasonable. It seeks to question the need for such measures. On its own part, the United States has even more stringent laws and regulations and would surely not prescribe such solutions for itself. Human rights and respect for diversity have been and remain a legitimate subject of discussion between India and the United States. In 2023, India has officially taken up numerous cases in the US of hate crimes, racial attacks on Indian nationals and other minorities,
vandalization and targeting of places of worship, violence and mistreatment by law enforcement authorities, as well as the according of political space to advocates of extremism and terrorism abroad. However, such dialogue should not become a license for foreign interference in other polities. भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका से यह भी अपील की है कि वह भारत की विविधता, लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र को समझने का प्रयास करे। इस रिपोर्ट और इसके विरोध के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मामला भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की गहरी समझ और संवेदनशीलता की मांग करता है। भारत और अमेरिका के बीच बेहतर संवाद और सहयोग के माध्यम से इन मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। आगे जानते हैं लोगों की प्रक्रियाओं को, आइए। आज जो यूएस बेस्ड एक रिपोर्ट जारी हुई है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जारी की गई है, जिसमें उन्होंने जो इंडियन रिलीजियस फ्रीडम स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज के लिए जो रिमार्क किया है, विच इज टोटली फॉल्स एंड बेसलेस, हम उसको सीधे से रिजेक्ट करते हैं एंड बियॉन्ड द फैक्ट है वो। जबकि जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, स्थिति है, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। अमेरिका को कतई किसी किस्म से ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के माइनॉरिटीज के बारे में बिना फैक्ट जाने, बिना ग्राउंड रिपोर्ट जाने इस तरह की बेसलेस रिपोर्ट को जारी करे। हम इसको कंडेम करते हैं, सख्त अल्फाज में कंडेम करते हैं। बीइंग इंडियन मुस्लिम, रिस्पॉन्सिबल इंडियन मुस्लिम, मैं इसको कंडेम करता हूं। दिस रिपोर्ट इज टोटली बेसलेस, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आप कंपेयर करें अदर देन मुस्लिम कंट्रीज में जो मुसलमान रह रहे हैं, उनसे लाख दर्जे अच्छे हालात में रह रहा है। हमें पूरी तरीके से यहाँ पर धार्मिक आज़ादी है, पूरी तरीके से रिलीजियस फ्रीडम्स हमें मिला हुआ है। हम तमाम हमारे मजहबी अरकान बखूबी बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। उनको कहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती तो क्या सड़कों पर नमाज देखने को मिलती है आपको? अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती तो यहाँ दुनिया में आप मुस्लिम कंट्री जो आसपास के एशिया के अंदर, उनमें कंपेयर कर लें मसाजिद कितनी है और हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद कितनी है, आप कंपेयर करें। दरगाहों से कैसे मतलब मैनेजमेंट किया जा रहा है? दरगाहों का मैनेजमेंट तो हिंदुस्तान की हुकूमत के हाथ में है। दरगाहों से ज्यादा दीन निकला है, इस्लाम फैला है। दरगाहों का मैनेजमेंट देखिए आके, माशाल्लाह यहाँ पर तमाम खुशहाल हैं। और मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल में जितनी भी स्कीम इंट्रोड्यूस की है वो सबके लिए की गई है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सबने उसका लाभ उठाया है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। तो इस तरीके की जो रिपोर्टें पेश की जा रही हैं, ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक नापाक साजिश है। हम इसको कंडेम करते हैं। बीइंग इंडियन मुस्लिम, मैं अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में जागें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम मोहब्बत अमन के साथ रहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है और तमाम अपने मजहबी अरकान, हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो भी तमाम अपने मजहबी जो अरकान हैं, रस्म रिवाज, उसको बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। आज ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिका से, मैं इसका पूरी तरीके से इसकी निंदा करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ इस बात पर, क्योंकि इस समय जो सौहार्द का माहौल पिछले 10-12 साल से देश के अंदर है, ऐसा पहले देश में कभी नहीं रहा है। और इस समय ऐसी बात आना कि हम धार्मिक हो, हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जैसे हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि साहिबजादा दिवस की घोषणा की जाए कि देश के लिए बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे 4 बच्चों ने, साहिबजादों ने देश के लिए बलिदान किया, तो उसके ऊपर दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो वो इन पिछले 3 सालों 4 सालों के अंदर वर्तमान सरकार ने इसकी घोषणा की। जो बड़े कार्यक्रम हुए, गुरु गोविंद सिंह जी से उनका जो जन्म 350 साल मनाया गया और गुरु नानक देव जी का 550 साल मनाया गया। पंजाब से लेकर पूरे इंडिया भर के अंदर गुरु नानक देव जी के 550 साल के लिए इस साल जो वर्तमान सरकार ने इंतज़ाम किए वो आज से पहले कभी नहीं हुए। दूसरा जो करतारपुर कॉरिडोर था, हम 70 साल से गुरु महाराज के आगे रोज़ अरदास कर रहे थे कि भाई जिन्ना गुरधामा तो पंथ में भी छोड़ा गया, उनके खुले दर्शन दीदारे, तो वो अब जाके ये इसका श्रेय मोदी जी को मिला और करतारपुर कॉरिडोर हमारे लिए खुला और हम उसके जाके दर्शन कर पाए।
India is the land of blissful coexistence, peaceful progress of all communities together. And today when we look at around the world, one of the rarest example of unity in diversity which is seen in India is exceptional. As a Gaddi Nashin of Dargah Ajmer Sharif, having represented Ajmer Sharif in India in over 100 countries, it has been an honor to serve our nation. And when we talk about the policies and when we talk about the Constitution, the Article 25 to 28, it gives us the religious freedom and the protection of all the minorities, irrespective of their faith, language, region, where they come from. I think this is a great inclusive understanding that India has always stood for. Recently we had the Eid celebration in Dargah Ajmer Sharif, and we had many folks, many devotees and many seekers from different parts of India, as well as we have a professor from America coming here and seeing this huge and numerous unity in diversity, which is so omnipresent at every step. This is what we stand for, and this is what Ajmer Dargah Sharif have been serving from last 800 years. I think this is something very incredible that the world can look up to India and learn. And this is also an important understanding where we as Indians denounce any stereotype of our nation, any perception versus the reality. The ground reality of India is very different from the perception that often a section of Western media try to create. We invite all the responsible leadership of around the world to come and experience this huge diversity in India, especially when any head of the states visit India. We also extend our invitation for them to visit Ajmer Sharif or the Sufi shrine, where they can really see the amalgamation and the unity and diversity of different faith people coming, celebrating spirituality together.